On behalf of Vicky Ladies Organization, I, Dr. Priyanka Mokshmar, welcome you all and esteemed speaker, Mr. Sudhakar Kaza, to an amazing session that is going to happen soon. All our distinguished flow members. Today, we are privileged to host a special session with a truly inspiring personality, someone who has impacted millions through his work and words. Let's together make this afternoon meaningful, interactive, and memorable. To commence this afternoon on an auspicious note, may I request everyone to kindly rise for the national anthem, please. Anthem that celebrates the spirit, strength, and unstoppable rise of every woman who leads with purpose. We rise together, we stand so tall. Vicky flows the name we call. Dreamers, builders, leading the way, empowering women every day. Step up strong, let the world know we are the fire, we are the glow. Innovation, passion in what we do. Vicky flow, we breaking through. Ideas spark and dreams see flight. We create the future shining bright. A sisterhood with hearts so true. Together we rise, we'll see it through. From dreams to action, watch us soar. Breaking barriers, opening doors. With every step, we show the way for a brighter and equal day. And equal day. And equal day. Step up strong, let the world know we are the fire, we are the glow. Innovation, passion in what we do. Vicky flow, we breaking through. We breaking through. We breaking through. Thank you so much. I now invite our chairperson. So I request our chairperson, our guest speaker for today, Mr. Sudhakar Kaza, our past chair, Ms. Neha Mittal, to kindly join us for the lamp lighting ceremony, please. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः
Can we have a huge round of applause? Thank you so much, sir. I now invite our dynamic chairperson, C. Shweta Agrawal, to share her thoughts and formally open the session. Good afternoon, dear Flowites and my esteemed guest. Every great story has two sides, one that the world sees and the one that truly shapes history. Today, we are here to uncover the untold story of one such defining moment in our nation's history, demonetization, a moment that tested systems, challenged mindsets, and transformed how India looked at money, trust, and governance. And to help us look beyond the headlines, we have with us a man who lived that storm from the very center, Mr. Sudhakar Kaza. Sir, we are deeply honored to have you here with us to share insights from the room where the history was written. Flo Indore welcomes you. This month has also marked completion of 7 impactful months of this tenure. As we look back, what truly stands out is not the number of events we have hosted, but the impact we have created. Through our medical, financial, and skill development initiatives across villages and our own city, we have not just conducted programs, we have transformed lives. From bringing healthcare and financial confidence to rural women, to nurturing wellness and entrepreneurship among our members, each effort reflects our belief that empowerment is a shared journey. At Flo Indore, we grow together stronger, uplifting communities while elevating ourselves, one purposeful step at a time. One of the most fulfilling parts of our journey has been the transformation across the 20 villages adopted by Flo Indore. What began like a just simple promise to uplift rural education and development has grown into a story of enduring project. Classrooms are alive with learning, health awareness is growing, and financial independence is reaching every home. Each milestone is more than just a number. It's a story, proving that when women unite with purpose, transformation follows. We gave Nisha Kumari platform through Flo Indore, and since then, her story has reached across chapters, inspiring many others like her. We brought Indian blind football team to Indore, giving them their due public platform and visibility that has since opened new doors for them. Our Flo Startup Spark Kids program empowered 40 teams from 19 schools to think, pitch, and dream like entrepreneurs, nurturing the spirit of innovation early. Through the Business Lead, we have helped homegrown women entrepreneurs learn, connect, and grow. Our Flo Marketplace continues to boost visibility, expand customer reach, and fuel real business growth for our members. And most recently, Flo Shadi Biz, a one-of-its-kind initiative turned empowerment into entertainment, giving a vibrant platform to artisans and small entrepreneurs just before the wedding season began. Flo Indore continued its journey with events that inspired, empowered, and created tangible impact. Harish Sai Raman's Accelerate workshop truly embodied our vision of empowerment through awareness and action, a reminder that real transformation begins within. The energy in the room was electric. 300 hearts, one purpose, to believe, to break through, and to go beyond. Through our financial literacy and legal initiative, Flo Indore aims to empower women with awareness and confidence. The Pink Legal Session was a vital step in learning and helping women understand their rights and stand strong. We recently concluded an insightful Flo Spark case study on MSME survival, guided by Dr. Upender Dhar, offering practical insights on turning challenges into opportunities and reminding us that resilience and financial awareness are key to growth. November 12, our cycle distribution drive brought smiles and hope to 20 underprivileged girls, a heartfelt step
towards enabling their journey of education, independence, and self-belief. And now, we have a truly special collaboration with Indore Literature Festival, and on 16th November, that is tomorrow, a thought-provoking conversation with Samishtha Mukherjee, daughter of late Honorable Shri Prime Minister Pranab Mukherjee, is due. I urge all members to join us for this insightful session as Flow Indore continues to bring inspiring voices and meaningful conversations to the platform. November 19, we bring Flow Spark Beyond the Palate, an experience that celebrates food, flavor, and health. On 26 November, our Flow Medical Kavach initiative brings sound healing, a soothing reminder that wellness begins within. November 29, our Flow Spark book reading returns with a fresh new chapter of learning and connection. And as I close, I want to say, at Flow Indore, we are not doing just events, we are creating impact. We are building connections because at Flow, we don't just show up, we show up with a purpose. And now we are turning this purpose into power. Thank you. Thank you so much, Shweta, for that. It's time now to introduce our special guest for today, Mr. Sudhakar Kaza, a leader, visionary, and a storyteller whose journey inspires one and all. I invite our committee member, Ms. Neha Jain, to introduce Mr. Kaza to the August gathering, please. Good afternoon, everyone. It is an absolute pleasure to introduce a man whose work, quite literally, is imprinted on the currency of India. Mr. Sudhakar Kaza is the former managing director of Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited, the very organization that prints our currency. A veteran banker with over 4 decades of experience at the Reserve Bank of India, he played a key role in designing India's new currency notes and was at the heart of 2016 demonetization exercise, a moment we all remember vividly. His journey began as a young officer in the State Bank of India and went up to span leadership roles across RBI, international assignments with IMF in Washington, and advisory positions with top financial institutions. An alumnus of Osmania University, University of Cincinnati, and Harvard Kennedy School, Mr. Sudhakar combines deep financial expertise with a global perspective. Please join me in warmly welcoming a visionary who's seen money, policy, change makers, close and inside out. Without much ado, let's hear it from the man himself, Mr. Sudhakar Kaza. Welcome. Good afternoon, everybody. After that kind of introduction, I really don't know what I have to say and whether I'll meet up with your expectations. But anyway, I'll try. I'll speak in both Hindi and English. I think my Hindi is not that much Hyderabadi and it can pass off in the north of the country. So I just want to know from the audience, how many of you feel that this demonetization was a stupid decision? हाथ उठाइए, free है ये तो. I don't belong to any agency or anything. It appeared stupid earlier, but now it is not. It अच्छा. appeared stupid when it happened. Yeah. Anyway, what I want to tell you is that the major economic disruptions in the country have been like coal nationalization, LIC nationalization, insurance nationalization, bank nationalization, introduction of GST, linkage of PAN card to bank accounts and Aadhaar card. These are all the things which have happened. There has been no introduction of any economic disruption without pain to people. Because, yes, to the general public. And currency is the only thing which you see something of government which touches you every day is currency. It's something that a poor man and a rich man also have.
See, in the earlier talk that I gave in an institute, they wanted to know more about the currency, but here you would like to know the demonetization story, because that is what something I feel interests you more than the other thing. So I will tell this and a little bit of that first 10 minutes so that you get to know what a currency is. वो blue वाला है ना, उसको लगा दो and give me the. One request to you is, I want to tell you, having spent my life in Reserve Bank of India, I am normally political, although I might agree with one dispensation or other. I was a great fan of Indira Gandhi also. So, you change over a period of time. I was not liking somebody whom I like now. So, these are all the things which happen. But in Reserve Bank of India, we just implement policies. We have no personal opinion on any of those things. भाई साहब किधर है? ये वाला नहीं. That one with the blue, heritage. Okay, the currency represents actually the heritage and culture of the country. So right from the beginning in India, you know, on the currency on one side, British India, we used to have the British monarchs and all, and on the other side we had the national monuments also. And post India, we had Brihadeshwara temple, Hirakud temple, this temple, and so many other places. And then we had lion, tiger, peacock, and all kinds of these things. Post independence, we never had a human on the currency note. Until 1969, when it was felt that Bapu, being the father of the nation, we should have somebody's face on that, and Bapu came. First what we had was the lion capital, which belongs to Ashoka's time. There was a Brahma Kamal below it, which was not taken by the government at that time. That Brahma Kamal ko nikal ke, wo log sirf Ashoka pillar ko liya tha. Later on, as you see, you have a tiger, you have an elephant, you have so many of these things are there, and Bapu comes in only 1969. Some Vardha, some photo of Gandhi. And in 500 rupees introduction during Rajiv Gandhi's time, Mahatma Gandhi made his first appearance, but he was then immediately removed until 1995. Okay, that's Gateway of India. Now, how many of you feel that we should change the face on the note? Arey Baba, ये तो dangerous है ये तो. Okay. Before introducing this UNESCO heritage sites, I will tell you some dates. You please hear the dates carefully. It's very, very important. 2012 government set up a committee to change this thing, and then a lot of suggestions came. Women of India, animals of India, scenery of India, great sages of India, great men of India. So whose name should you feel should be there on the note? Who should be on the note? Monuments. हाँ? Monuments. Monuments नहीं, monuments तो हो गया. अब ये monument तो रहेगा दूसरे तरफ. जल्दी नाम बोलो यार. भगत सिंह. क्यों भगत सिंह? अच्छा, इंडिपेंडेंस के लिए क्या है? अब झांसी लक्ष्मीबाई. अरे वाह, झांसी की रानी थी. हाँ हाँ. अच्छा, नेताजी सुभाष बोस, सरदार पटेल, अंबेडकर को भी लगा देंगे? नो, नहीं लगाएंगे. चलो, और ठीक है, एक सर्वे किया था करके, बहुत सजेशंस आ गए. तो सजेशंस पूरे हमारा काम क्या है, सरकार को भेज दिए. अब ये कुछ लोग समझे कि ग्रेट मैन ऑफ इंडिया बोले तो सिर्फ अंबेडकर है और कोई नहीं. Some people felt great dynasties of India बोले तो सिर्फ एक ही डायनेस्टी है, बाप से लेके 6 जनरेशन नीचे तक. कुछ लोग समझे कि ग्रेट इंडिपेंडेंस फ्रीडम फाइटर्स बोले तो 6 नाम में से 4 नाम एक ही फैमिली के. ये पूरा देख के जब हम भेजे, वहां पे जो भी सरकार में डिसाइड करता है, ऐसे भाई कोई नाम नहीं लेता.
उसने बोला बापू ही ठीक है। तो आप समझ गए बापू क्यों है? बापू ठीक है और बापू रहेगा। अभी हर 10 साल हम नोट का कुछ ना कुछ बदलते हैं, आइदर द सिक्योरिटी फीचर्स और द डिजाइन और समथिंग। सो बदलेगा मगर बापू रहेंगे। ओके, दैट पर्टिकुलर थिंग इज रिमूव फ्रॉम योर माइंड। तो ये डिसीजंस कभी कभी ऐसा होते हैं, कभी कभी कुछ हम करना चाहते हैं, कभी कभी हम कुछ करें तो उसी डर से क्या होगा वो पुरानी चीज को कंटिन्यू करते हैं। पर यहां एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज तक इस दुनिया में कोई भी बड़ा नेता नोट पे गया वहां से हटा नहीं, कुर्सी छोड़ा नहीं। जॉर्ज वाशिंगटन का 1881 में अमेरिका में $1 नोट पे डाला, आज के दिन तक जॉर्ज वाशिंगटन वही है। 2 रुपए के नोट पे वो लोग 100 साल बाद 1800s में, वो 1781 में आया था जॉर्ज वाशिंगटन, 200 साल हो गए इसके। अब्राहम लिंकन, वो भी हटा नहीं। $100 के नोट पे बेंजामिन फ्रैंकलिन, 200 साल के बाद वही वो कायम है। किसी को आप नोट पे बिठाते हो, नोट से हटता नहीं आसानी से। आपके जीवित काल में मेरे हिसाब से बापू हटेंगे। ओके, इस चिंता को अपने मन से दूर कर दीजिए आप। So then the government decided, let us have UNESCO World Heritage Sites, क्योंकि there were only 39 sites and they were spread all over India. So they issued a thing, India के 5 corners है, center है, 5 corners से आप एक जगह से एक ले लीजिए and then ensure that they are not from the same period, not from the same kingdom, कर लीजिए। तो then क्या हुआ, ये वाला हम छोड़ दिए, वापस आते हैं। कमिटी ने यह दिखाया, हम्पी, रेड फोर्ट, महाबलीपुरम, ताजमहल, विक्टोरिया टर्मिनस, अजंता। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूं 2013, मैंने यू विल रिमूव द ब्लेम फ्रॉम सम पर्सन वेरी फास्ट। इसमें कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है क्या आपको? पहले वाले रेड फोर्ट और ताजमहल दोनों ऑलमोस्ट एक ही साल में फाउंडेशन लेड किया गया, एक ही महाराजा था और एक ही डायनास्टी था। वो फिट नहीं होता है क्योंकि आगरा और दिल्ली बहुत करीब है। तो ठीक है, मगर हम लोग ने 500 और 2000 पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था। वो मंगलयान अलग से इस तरफ नहीं था क्योंकि 2000 पहले नहीं था, 2013 में। मंगलयान है, रेड फोर्ट हमने इश्यू कर दिया था। और जब हम 100 इंट्रोड्यूस करने तक आए थे, हमने ताजमहल का एक बना के भेज दिया था, वो तुरंत वापस आ गया। पहले कमिटी ने हाँ बोला, मगर अब जो भी डिसाइड कर रहा था उधर वो बोला नहीं। आप क्या समझते, ताजमहल रहना चाहिए या नहीं? क्यों इतना, वाई आर यू सो स्ट्रॉन्ग, क्यों नहीं? मुगल एम्पायर्स पे मुगल डायनेस्टी के टाइम का है और उसने अपनी वाइफ की याद में मकबरा बनाया। अरे वाह, बहुत अच्छा। किसी ने कहा, मैं नाम नहीं लेता हूं, किसी ने कहा लक्ष्मी पर मजार शोभा नहीं देता, और ये जो किसी ने कहा अब उसकी बात तो टाल नहीं सकते। तो हमें दिया गया 1 हफ्ता टाइम, तुम कुछ भी करो, यूनेस्को साइट ही रहना चाहिए। और यू थिंक ऑफ योर क्राइटेरिया। आप लोगों ने क्राइटेरिया से बहुत छेड़छाड़ कर दिया है, दोनों एक जगह से निकाला और हंसते हुए बताया कि आपने लाल किले को हरा रंग में बताया, हमने कुछ नहीं कहा। हम क्या कर दिए, ठीक है बोल के वी हैड वन कैलेंडर, गरवी गुजरात बोल के हमने बनाया था 2015 में। देखो भाई, 2014 का कैलेंडर हमारा कंपनी का जनवरी में बन गया था, और जो कुछ भी हुआ 2014 जनवरी के बाद हुआ, तो 15 का बनता है ना गरवी गुजरात कैलेंडर। तो 2015 गरवी गुजरात कैलेंडर बन गया। जब गरवी गुजरात कैलेंडर बन गया, we have to take high resolution photos and all, we communicated, सर जी हमारे पास इसमें 2 ही है यूनेस्को साइट, और
ये जो है, वो बोला तुम कुछ भी लगाओ मगर लक्ष्मी का शोभा मत कम करो, मजार बाजार ये मत लगाओ उधर। चलो ठीक है, तो रानी की वाव क्लियर हो गया है, एंड देन वी प्रोड्यूस रानी का, दैट्स हाउ रानी की वाव के। ये मंगलयान कैसे आया कि जब हमको बताया गया कि डिमोनेटाइजेशन करना ही है, और वो 1 साल पहले बताया गया, तो 1 साल में हमारी सोच में ये था कि नोट पहले बना के छोड़े या बिल्कुल नोट ना बनाए और लोगों को तड़पाए। मैं मजा आता है ना तड़पाने में। उसका कारण है, अगर नोट ज्यादा छोड़ने से क्या होता है कि जिसकी शक्ति है इस देश में, जो बाहुबली है, वो क्या कर देता है, वो नोट को किसी भी हाल हासिल कर लेता है, वो बैंक अकाउंट में नहीं जाता। इकोनॉमिक मिनिस्ट्री का ये कहना था, रेवेन्यू का, कि भाई सारा हमारा ये काम करने का इच्छा ये है कि नोट बैंक अकाउंट में जाना। See, I want you to know that if money is in a bank, your money is safe. That is not the point. The money can be used by others for economic activity. Others will get loans. They will again deposit and they will get loans. It results in economic prosperity of the country. Idle money in somebody's house, he might spend it on himself and create some kind of economic activity, but it's not good for the country. Anyway, whatever it is, the idea was that money should go, so which means that you should start producing as close to the date as possible. तो ये बड़ा टेंशन वाली बात है, क्योंकि at that time governor also said one important point कि अगर 50 दिन के अंदर, 49 डेज के अंदर, अगर 2/3 ऑफ द वैल्यू हम वापस नहीं डालते सिस्टम में, if we don't put it back, then there will be economic implosion, nation will suffer. So governor at that time was a very good international economist, Raghu Rajan. This will clear one more doubt in your mind, whether he knew or he did not know. ऐसा कुछ बात नहीं, nothing happens without RBI governor knowing, and I was a small minion in executive director rank, and हमारा ऑर्गेनाइजेशन का रूल और सभी ऑर्गेनाइजेशन का रूल क्या है, अगर मैं जाता हूँ तो जनरल मैनेजर भी हो, मेरे से जूनियर है, तो वो नोट्स लेता है, और जब गवर्नर साहब, डिप्टी गवर्नर साहब जाते हैं, हम स्टूल पे बैठ के हम नोट्स लेते हैं, हमारे कुछ भी कैडर रहने दो ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम 50 मीटिंग अटेंड कर चुके हैं उनसे, सब कुछ सबको मालूम है, बट इट सूट्स सम पीपल टू टॉक व्हाट दे वांट लेटर, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हिज पॉइंट्स वर करेक्ट, and because of his contribution, I feel on these critical points, demonetization did not fail. So then what happened? Then हमने हाथ खड़ा कर दिया। मैं बोला सर, हमारे इंटाग्लियो प्रिंटिंग करने में हमारा इतना ही कैपेसिटी है, आप हमको टाइम दे रहे हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में हम कितना प्रिंट करेंगे? 2/3 ऑफ वैल्यू तो हम नहीं कर पाएंगे, और आप 1000 रुपये हटा दिए। देन पूरा सोच के बोले, with great difficulty they said RBI suggested a 5,000 rupee note. Anyway, suggested by the great man himself, our governor. So, but then the man in charge said, नहीं, मैं 1000 का हटाऊं और 5000 का डालूं, तो वैसे ही हम, माने people have already hitting him with gun, तो अभी ये तो पूरी टैंक आ जाएगी उसके ऊपर. So he said no. So then I was asked to go into a room along with my junior and said, you work out. हम बचपन में हम लोग कुछ काम करेंगे, arithmetic करते थे. If 3 men can do work in 4 days, in how many days 6 men can do? तो हम immediately हम वर्कआउट करना शुरू करें। ये तो 5000 मना कर दिया, 4000 को हाँ करेगा क्या, 3000 को हाँ करेगा क्या, 2000 को हाँ करेगा क्या? तो हमने कर दिया कि 2000 into 3.75 billion, 7.5 lakh notes, 5 billion notes, 500, 2.5 lakh, 10 lakh crores, 15 lakh crores हम फूक रहे हैं, वैल्यू 10 lakh crores, और इतना हम 50 दिन में ऊपर नीचे करके मैनेज कर लेंगे। So हमने बना दिया, बना के हमारे डिप्टी गवर्नर साहब, एक्चुअली आई एम तेलुगु, I speak good Hindi, English and many languages, and I speak Tamil also very well, because my wife is not here, my wife is a Tamilian. ओके, कोई चॉइस नहीं रहा।
तमिल भाषा के बारे में। सो हमने तमिल सीख लिया। तो हमारे डिप्टी गवर्नर साहब आए, तो मैं बोला अन्ना हमको 2000 छापना है। तो वो देखा, सीरियस से देख के बोला ये तू कुछ भी करेगा, मैं अंदर जाके बोलना है शेर के सामने मैं जाऊं बोला नहीं। मैं बोला नहीं बॉस, कोई तरीका नहीं है, हम नहीं कर सकते नहीं तो anyway he went inside and 5 minutes surprisingly he came back and he said yes, he is agreeable for a one time printing only of 3.75 billion only to meet the shortfall in money value. So that's how 2000 came, and immediately we had to take, and in those days country was very proud of Mangalyaan. See, Mangalyaan was all planned in UPA government, but it was launched in September when Modi Sahab was there. He was very proud of it. I want to tell you, many of these projects, please, where RBI or even our bureaucracy is involved, these are not specific to the governments. अब GST स्टार्ट हुआ, चिदम्बरम साहब का है, 20 साल चला, इम्प्लीमेंट कोई किसी और ने किया होगा। अब जो चक्का एंडिंग में मारता उसी का क्रेडिट होता है, मगर पॉइंट इज पहले स्टेडियम पिच बनाने वाले दूसरे लोग होते हैं। सो वैसे ही आधार, आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टार्ट किया, मगर जनधन योजना हुआ 2014 में, तो ऐसा मंगलयान। तो बोले कि नहीं, हम ये तो वन टाइम नोट है, ये पब्लिक को बताया नहीं, किसी को मालूम नहीं वन टाइम नोट है, इसमें मंगलयान बनाएंगे। और मंगलयान के नीचे एक्चुअली उस पर होना था अजंता, मगर क्या हो गया, हमने बोला कि मंगलयान नहीं तो नीचे हम एक पैनल लगाएंगे, उसके ऊपर हम ब्रह्म कमल और ऐरावतम और वो हम्स को उसका एक रन करेंगे पैनल, ओके। और उस पर भी मुझे बहुत दिक्कत हुआ, पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज हो गया, ऐरावतम एलिफेंट बीएसपी का है करते, ब्रह्म कमल भाजपा का है और हम सब कुछ और का है। तो मैंने बताया भाई ये पूरा अजंता में है, तो the photographs originally taken by us, we had to send it to parliament. अने देश ऐसा है, कुछ भी करो आपको आगे पीछे पूरा बैकअप करके जाना पड़ता है, तो ये बना दिए। then we sent and मंगलयान का अप्रूवल हो गया। अप्रूवल होते कि I went to the one of our board directors was Professor U.R. Rao, who was the ISRO chairman and missile scientist. मैं बोला राव सर, हमने मंगलयान को लगा दिया 2000 में, ये आने वाला है। ये बोले 2000 का नोट, पागल हो गए क्या तुम? मैं बोला नहीं सर, पागल नहीं है, ये सरकार का डिसीजन है, 2000 का नोट आ रहा है और हम सिर्फ नोट बदल रहे हैं। बोला 1000 निकाल के 2000 बना रहे? मैं बोला बना रहे सर। पूरा देखा, नोट को देख के बोलता ये सुधाकर मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप अमेरिकन सैटेलाइट का फोटो क्यों लगाए उधर? अब ये बड़ा जोक ये है, हमको पता नहीं था कि वो अमेरिकन सैटेलाइट है जो हम उसको लेके गए। मैं बोला सर जी, हमको तो गूगल पे यही मिला, अब मंगलयान तो मंगल पे है, हम कहाँ से फोटो लेंगे उसको? सो उसने क्या कर दिया, हमको लेके जाए, वो बोला हमारे पास है, मैं देता हूँ। मैं बोला सर ये तो साहब से क्लियर हो गया, और ये बोला कोई भी नहीं पहचानेगा, तो उसको हटाओ इसको लगाओ, सही मंगलयान को बिठा दो। तो सही मंगलयान को बिठा दिया। आज तक किसी ने पूछा नहीं हमको पहले वाला कहाँ गया। देश ऐसा भी चलता है। एनीवे मंगलयान आ गया। सो 2000 का नोट आया है एज ए टेम्पररी ब्रिज नोट टू ब्रिज द वैल्यू। ओके ओके, सो हमारे नोट्स ऐसे बने। सो ये है, नोट का साइज छोटा हुआ। आपको पता है नोट का साइज छोटा क्यों हुआ? मैंने एक दिन सवेरे मोदी साहब बोले आज हम कुछ छोटा करेंगे, मोदी बोला कि नोट छोटा हो जाए, नहीं आज कुछ धमाका करेंगे, चलो हम 500 हटा देंगे। ऐसा नहीं, कोई तो कारण होगा, नहीं मालूम। चलो, सी आवर नोट इज मेड ऑफ व्हाट? Cotton. It's not made of trees. American note is also made of cotton, but 25% linen. British note was also made of cotton. But British and Indian notes lived only 3.5 years. But American note ये चला 7 साल 8 साल चल रहा है। और हमारे लोग आरबीआई तुरंत क्या करता है, आरबीआई को बड़ा दिक्कत होती है तो एक कमेटी फॉर्म करते थे।
कमिटी फॉर्म करके पूरे साइंटिस्ट और आईआईटी प्रोफेसर सभी लोगों को बिठाए, वो लोग पूरे उसका केमिकल कंपोजिशन, ये वो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये वो पूरा देखे। तो सभी चीज एक थे, मगर ये 3.5 साल में मरता, वो 7 साल में मरता। मानी ये क्या विटामिन खा रहा है अमेरिकन। देन व्हाट हैपेंड, दे डिड ए कॉमन मैन स्टडी। रोड पे मैंने मोची के पास चले गए, तो उसने बताया सर ये जो हमारा देसी नोट है ना, ये बटुआ में अंदर नहीं जाता है, ये बाहर ठहरता है। ये दूसरा नोट आपने जो दिया वो बटुआ में बैठ गया। एकदम से सबकी आंख खुल गई, दिमाग की बत्ती जल गई। So immediately our Reserve Bank produced a report कि अमेरिकन साइज में हम 66 में कर देंगे सभी नोट, ताकि वो नोट अंदर जाता है। एंड इट हैज बीन प्रूव्ड बाय टाइम दैट द न्यू नोट्स व्हिच वर प्रिंटेड इन 2016 आर स्टिल नॉट yet destroyed. So you see, sometimes the solutions don't come from very great, very intelligent people. कि आम आदमी जो हम बेवकूफ समझते हैं, बेवकूफानापन में भी कुछ अकलमंदी होता है, तो वो उसने करके दिखाया। नोट लंबा क्यों है? अमेरिकन नोट सब एक ही होते हैं, हमारा नोट लंबा होता है क्यों? अलग अलग साइज, क्योंकि अच्छा और एक है, आपको ये नए नोट का कलर पसंद है क्या? बहुत गलीज है ना। देखो कलर होता है, 2000 का नोट का कलर देखो। हाँ, मगर नोट का कलर क्या है अंधे ही डिसाइड करते हैं, हम नहीं। नेत्रहीन लोग ही हमारे यहाँ इस देश में, विजुअली चैलेंज पीपल बहुत अच्छा परसेंटेज है। बहुत सारे गरीब को ग्लासेस यूज करना के लिए वो लोग दे कैन नॉट अफोर्ड। सो द 4 बिग नेशनल ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशंस वेर कॉल्ड। पुराना नोट से अलग होना चाहिए कलर, और दे तो उनका क्लियर कलर्स ये थे। क्योंकि जब मैं ये नया कलर लेके जाके हमारे डिप्टी गवर्नर साहब को दिखाया, वो बोला यार कौन अंधा डिसाइड किया ये? मैं बोला सर जी माफ करना, अंधा ही डिसाइड किया। ये अपने हाथ में नहीं है, ये जिसको डिसाइड करना है वही किया है। सो दैट इज हाउ समटाइम्स सम डिसीजंस आर मेड। अच्छा, ये नोट का साइज छोटा कब हुआ? 2012 में। अब टाइम फिट हो रहा है ना आपको? 2012 में कौन थे? 2012 दिसंबर में वो एक्सेप्ट हो गया रिपोर्ट, मगर 2013 में जो ज्ञानी थे ऊपर, उसने बताया कि देखो भाई, एक ही टाइप का नोट 2 साइज में हम इंट्रोड्यूस करना ठीक नहीं होगा। बिकॉज डॉक्टर सिंह वॉज आरबीआई गवर्नर ऑल्सो, काम करने का मौका मिला उनसे। बहुत ही एनालिटिकल और इंटेलिजेंट आदमी है, माने उनका पॉलिटिकल ये मत सोचिए, बट बहुत ही नेक और उम्दा इंसान है। सो बोला कि ये दिक्कत करेगी आम आदमी को, 2 साइज का नोट आप कैसे छोड़ते हो? नेक्स्ट टाइम हम तो वैसे भी बदल रहे हैं, कमिटी सेटअप कर दिया है, 2014 के बाद हम चुन के आएंगे तब कर देंगे। माने इसीलिए आप कोई चीज पोस्टपोन मत कीजिए। ज्यादा पोस्टपोन करने से मामला बिगड़ जाएगा, उसको टाइम में करना पड़ेगा आपको। तो वो होके जब 2014 आ गया, तो व्हाट हैपेंड इज 2005 ओनली फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस द सिक्योरिटी फीचर्स ऑन द नोट्स। ओके, व्हाट आर द सिक्योरिटी फीचर्स? इसको कहां पे करना है? इधर। व्हाट आर द सिक्योरिटी फीचर? ये तो नोट्स है। अच्छा, और एक बात है, आपने कभी 1000 और 5000 और 10,000 का नोट देखे? ये पुराने, क्योंकि 5000 10,000 के नोट और 1000 के नोट 1946 में फर्स्ट टाइम डिमोनेटाइजेशन किए थे नेहरू जी ने, और बाद में मोरारजी भाई फिर दोबारा डिमोनेटाइजेशन किए थे 78 में। मगर उस टाइम क्या हुआ, ये जो नोट्स थे ना, ये आम आदमी को टच नहीं करे, क्योंकि
500 रुपया, 1000 रुपया, it was lot of money. Why were they having 10,000 rupee notes those days? Because आज के दिन आपको RTGS है, ये है, वो है. उस जमाने में कोई बिजनेस करना है तो आपको अगर 20,000 ले जानी हो तो वो कपड़े में अंदर सिला लेके रख लेके चले जाते थे. You cannot send electronically. So that's how they were there. And at that time, the total currency in circulation was only 1,320 crores. और उसमें 143.07 crore was high value. और उसमें से 134 crore, 134.9 crore वापस आया. बस इतना ही था हमारा. और मजे की बात यह है, 1978 when we did demonetization, the total currency in circulation was 1825 crores, 1,825 crores, only that much. एक अच्छा रेड मारने से अभी किसी के घर से निकलते इतने पैसे. 1,825 crores, 500 करोड़ का बस करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ा 30 साल में. And can you imagine what was the currency in circulation in 2016? 17.5 lakh crores. So जब लोग बोलते हैं ना हमारा बहुत तरक्की हुआ, पहला ये हुआ, घंटा हुआ, कुछ नहीं हुआ. क्योंकि 1947 में साउथ कोरिया हमसे बहुत पीछे था, चाइना हमसे बहुत पीछे था. अब वो कहाँ और हम कहाँ. पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, रास्ते पर है मगर मंजिल दूर है ना. सो दिस इज द डिफरेंस. बट सेकेंड टाइम व्हाट हैपेंड, ओनली 146 crore हाई वैल्यू था बट ओनली 124 crore was collected, 22 crore was not collected. अभी ये था दिक्कत. थर्ड टाइम डिमोनेटाइजेशन में इट वाज फाउंड दैट 2005 ने हमने करेंसी का, अभी देखो इसमें पुराने नोट में कोई भी सिक्योरिटी फीचर नहीं था अदर देन द विंडो. सिक्योरिटी फीचर नहीं था. अभी नया उसमें देख लीजिए क्या क्या सिक्योरिटी फीचर है. इसका लाइट कहां से आता है, इसमें आता क्या, अरे यार चला गया. इसमें लाइट कहां से आता, लाइट वो ये वाला हाँ, ये वाला ना, कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, नहीं. Anyway, it is showing here but it's not going there. Anyway, what you find here is this is security feature, latent image. बीच वाला बटन है ना बड़ा, उससे लाइट अरे ये नहीं आ रहा यार, हल्का सा ही जलता है, थोड़ा लाइट नहीं जलता. इस पे नहीं दिख रहा है. हाँ उस पे नहीं. अभी दिख रहा है. चलो इस पे ठीक है, हमारे हाथ से काम करिए. ये है लेटेंट इमेज. नोट को ऐसा रख के देखने से आपको उस इमेज में आपको करेंसी का फिगर दिखता है. दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर ए कॉमन मैन. और ये जो है विंडो थ्रेड, उसको इधर इधर करने से कलर ब्लू टू ग्रीन होता है. ये कलर शिफ्टिंग, वो भी ब्लू टू ग्रीन होता है. ऐसे 17 फीचर्स हमने पब्लिसाइज किया है आरबीआई से. बट इन रियलिटी देयर आर 51 फीचर्स. समझे? और अब पूछो ना कुछ, ये है क्या, वो नहीं क्या, पूछते हैं लोग हमसे बीच में रोक के. नहीं उसमें चिप है क्या बोल के पूछते लोग हमसे. करेंसी चिप है क्या, आप क्या समझते हैं, चिप है क्या, नहीं है, नहीं है. अब बहुत दुखी करूंगा आप लोगों को. उसमें चिप जैसा चीज है, एक रेयर अर्थ मटेरियल आरएफआईडी सिग्नल देता है और उसको हम सेंसर से पकड़ सकते हैं. अगर हम मैडम के घर में चले गए तो इस सोफा में लगाया कुछ माल और इसमें नहीं लगाया तो इनकम टैक्स वाला सीधा उस सोफा के पास जाता है, क्योंकि उसके पास एक चीज होती है वो जो पी 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 करती है, तो पकड़ लेता है, मालूम है यहाँ पे. अच्छा ये चीज किसने लगाया होगा, मैंने किसकी दिमाग ये है कोई लगाएगा ऐसा.
यहां फिर दोबारा दुखी करता हूं, ये कांग्रेस ने लगाया 2005 में, क्योंकि आप लोग कई लोगों के मन से कई भ्रम हटाना चाहिए। अभी समय आ गया है, इसीलिए वो लोग एक किसी चीज पे बात नहीं किया जब डिमोनेटाइजेशन का हुआ, क्योंकि हमारा बंदा आके पूरा फाइल खोल के बोलेगा ये इंदिरा जी के टाइम में हुआ, ये इसके टाइम में, ये उसके टाइम हुआ। सो बट most good currencies in the world have what is called as a forensic feature, which is not informed to the public or to the banks, and which is found by some kind of an instrument, which is a very specific instrument. और इसमें क्या है, रेयर अर्थ मटेरियल का है, और उसका algorithm सिर्फ इसको मालूम है, ये सेंसर को वो लॉक करता है, तब वो अच्छा नोट है बोल के वो पहचानता है। एंड ये 2005 में किया, और 2016 में हम सिर्फ उसको कंटिन्यू किया, मगर अभी 2020 में उसको बदला, क्योंकि वी हैव टू कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज द काउंटरफिटर्स आल्सो कीप लर्निंग। सो आप समझ गए। तो एक और भ्रम हट गया, नोट छोटा हुआ 2012 में, 2005 का नोट को हटाने का कार्यक्रम शुरू हुआ 2012 में। 2014 में जब आए थे, लोग बदल गए दिल्ली में, तो आरबीआई ने बोला सर जी अभी तो करना ही है डिमोनेटाइजेशन। तो उस समय उनका थिंकिंग ये था कि अभी हम नए नए आए हैं, कुछ ऐसा वर्षा उल्टा पलट काम नहीं करेंगे, जैसा जनता पार्टी 2.5 साल में गई, हम नहीं जाना चाहते, लंबी दौर का आदमी है ना। तो बोला नहीं अब नहीं करेंगे। मगर धीरे धीरे क्या हुआ, बड़े बड़े ट्रक्स में पैसे मिलने लगे, स्टेट स्पॉन्सर्ड काउंटरफिटिंग हो रहा था। सो आरबीआई की तरफ से ये इंपॉर्टेंट चीज था कि इसको हम नोट को बदलना ही चाहिए, कि 2005 का नोट वी डिड व्हाट इज कॉल्ड एज नॉन डिसरप्टिव विड्रॉल। नॉन डिसरप्टिव विड्रॉल इज वी टेल द बैंक्स, देखो भाई आप अपना निगराना ठीक रखो, ये पुराने नोट जब कभी आते हैं उसको निकाल के आरबीआई को दे दो। वो देते चले गए, नए नोट आते चले गए। तो अभी समझ में आया कि 2014 में सरकार को बोले भाई हटाओ, वो लोग बोले अब फिलहाल कुछ नहीं करेंगे। 2014 जनवरी दे सेड नाउ दिस नोट इज विड्रॉन फ्रॉम पब्लिक 2005 का, एंड इट विल ओनली बी गिवन इन आरबीआई। आम आदमी को ये बात नहीं मालूम, क्योंकि वो जो बंदा रिलीज कर रहा उसको ही मालूम, तो उसने रिलीज बंद कर दिया। यू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन द होल डैम थिंग। But then the focus shifted onto the post-2005 notes started coming in very large. 8.6 notes per million was the counterfeiting FICN rate बोलते हम, counterfeits to 1 million was 8.6. उसको तो कम करना ही था. So that is a great reason. Other thing is, of course, government announced black money also, but black money is usually not in currency. Very little is in currency. I think more will be in land, gold and other assets. But monetize karo, whatever currency is there, people would like to put it in banks or monetize into another. See, if you monetize it into another asset, the currency goes into the bank. The idea is to get the money into the bank. So ऐसा है। तीसरा ये था कि हाँ ओके बोलेंगे, उसका भी जवाब देंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने सोचा नहीं था, ऐसा नहीं कि हमने ये नहीं किया था, बट आई विल कम टू दैट। वेयर वाज आई? Good dear, thanks. You're following my. Okay. The third point was terrorism. If you want to know, post demonetization, there was no stoning in Kashmir. 500 and 1000 rupees दो बच्चों को रखो, ये नहीं था, बंद हो गया। अभी दिल्ली में एक हादसा तो हुआ है, मगर बहुत कम हो गया। हैदराबाद में हमको हर 2 महीने को कुछ ना कुछ होता था, बस स्टैंड में 10 लोग ठहरने के लिए डरते थे, तो वो बंद हो गया। सो
all these are various other objectives. RBI objective is only to cut short on counterfeit. Anyway, we had already made the notes, it was decided, but unfortunately the governor changed. वो हमको बहुत दिक्कत हुआ कि सिग्नेचर बदलना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो पूरा हम कर दिए जल्दी जल्दी. Then September 5th 2016 से नया नोट्स प्रिंटिंग शुरू कर दिए और शायद मंथ एंड को करना था, बट वी हैड एक्चुअली प्रिंटेड 2000 रुपीज का नोट्स का बॉक्सेस, फुल्ली सील्ड देम opaque and sent it to commercial banks like SBI. Do not open until orders are given. But कुछ लोगों ने उसको खोल के अक्टूबर 22nd 23rd को उसका व्हाट्सएप करना शुरू कर दिया. और इंडिया में सबसे फास्टेस्ट नॉलेज डिसेमिनेशन हैपेंस बाय व्हाट्सएप. कोई भी सीक्रेट किसी को नहीं बोलना है तो उसको व्हाट्सएप करो तो एकदम वायरल हो जाएगा. सो देन November somewhere 4th or 5th it was decided, let us do it on November 8th. And isme there are so many decisions. This I want to tell you about. Abhi people will tell, why not this, why not that. Like आप बोल रहे थे, मैडम बोल रहे थे, why not plastic note. क्योंकि हमारा देश एक बड़ा ग्रेट देश है. क्योंकि अभी इस मई को हाल ही में हर एक आदमी एक्सपर्ट था. राफेल फाइटर कैसा चलता है, ये चलता है, उसको कैसा फ्लाई करना है, ड्रोन कैसा चलता. उस जमाने में पूरी टॉक व्हाट्सएप उसी चीज़ों पे चलती थी. बाद में वुमेन्स वर्ल्ड कप आया तो लोग बोलते थे ये खेलना, वो खेलना, जमामा खेलना था, ये नहीं खेलना था, वो शेफाली वर्मा को क्यों नहीं खिलाए, एक्सपर्ट. मेन का वर्ल्ड कप हो गया तो लोग बोलते हैं अभी कोहली कैसा खेलना था उस बॉल को. सो दिस इज आवर कंट्री इज लाइक दिस. So in such a scenario we are operating. So there are a lot of experts also. So anyway, that decision was taken on November of 8th, and that is called actually counterfactual. Counterfactual is har ek decision that we had, they were long meetings, 8 hours, 10 hours and all. Core committee was only 8-10 people were knowing that demonetization, but other people were discussing how to improve the currency, how to change and things like that. They were not knowing. But their ideas were taken. Like for example, whether we should print more notes or less notes. That also a lot of people, chartered accountants, the big four, everybody was consulted. Now if you tell something, you are telling a counterfactual without knowing that if you implement the counterfactual, what happens? That also you should know. For example, many decisions were changed on the fly. Like it was my thinking that हमने वो हाथ पे इंक लगाना चाहिए जो 4000 पहले हम सेटल करते हैं, तो ताकि वही आदमी फिर दोबारा न लेगा. उस समय थिंकिंग ऑफ पॉलिटिकल क्लास वाज नहीं, ये ऐसा गरीबों की बेइज्जती मत करो, गरीब लोग ऐसा नहीं करेंगे, अमीर लोगों का सहारा नहीं देंगे. ऐसा नहीं हुआ. तो तीसरा चौथे दिन को that was introduced, that how to, that they should not be changing. Similarly, there were a whole lot of other decisions that were taken immediately on the fly, and then they were implemented. And of course, we have had a great problem of how to reach the money to the various places. We had decided that we should reach it to the big banks directly, and Note Mudran was authorized to send it directly. मेरे पास मेरे 4 एयरफोर्स प्लेन और 4 कमर्शियल प्लेन दिए गए. अब आप समझो, छोटा लड़का जब था, मम्मी डैडी कभी प्लेन नहीं दिए खेलने के लिए. तो हमारे हाथ में 8 प्लेन आ गए. हम इधर से उधर प्लेन को घुमाते थे और भेज दिए. एंड दे वेंट. Regarding your plastic this thing, it was thought of plastic, but see, the point is, cotton note benefits the cotton farmers. It is an eco-friendly note. After its destruction, after it runs through the cycle, we make it into small pieces and they make it into pulp, and it gets made into paper, it gets made into saris, it gets made into so many things. Whereas a plastic note, it doesn't die, it destroys the environment. So iske liye, and even today, 97% of all notes are in, 96-97% all notes are in cotton only.
barring countries with small note printing like Canada, Britain, Australia, ये सारे तीनों कंट्रीज का मिला के 1 बिलियन नोट्स नहीं है और हम 35 बिलियन बनाते हैं सालाना। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ उस दिन 75 बिलियन नोट्स थे। हम डिमोनेटाइज किया 23 बिलियन नोट्स को, बट दे वेर 85.6% ऑफ द वैल्यू। हाई वैल्यू नोट्स बढ़ता जा रहा है। 2000 में ओनली 25% ऑफ वैल्यू था वो, और आज के दिन 150 बिलियन नोट्स है, 37.6 लाख करोड़। क्योंकि note will always form a particular percentage of GDP. GDP was only 1.6, 1.7 trillion when नोटबंदी took place. आज के दिन 4.2 ट्रिलियन है। माने बहुत लोग कुछ बोलते हैं डेड इकोनॉमी है, ये है वो, ऐसा नहीं है। इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी हमारा 18 ट्रिलियन है। माने हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। सो बट दैट इज वाई ना बिहार में लोग ने माना नहीं ना, मैं क्योंकि मेरे को एक बात अच्छा लगा, ये बात थोड़ा हटके है मगर बोलना पड़ेगा। मैं ये बड़े बड़े विश्लेषक के सब देख रहा था, तो वो लोग बहुत कुछ बोले, नए नए ये है एमवाई समीकरण, ये करण, मल्ला कास्ट, ये कास्ट, ये कास्ट, वो सब बोले। बोले तो देन दैट फेलो आस्क्ड एंड वांटेड टू इंटरव्यू वन मैन ऑन द स्ट्रीट। ये मोची वाली बात हो गई थी। उसने बोला हाँ तेजस्वी साहब तो सही बोल रहे थे, बेरोजगारी है। सोच के बोला हाँ गरीबी है, हमारे पास जमीन नहीं है, मुद्दे तो सही हैं, मगर मुझे भरोसा नहीं कि ये ठीक करेगा। उसका बाप ने तो ये हालत कर दिया हमारी। सो हम समझते हैं कि आम आदमी बेवकूफ है, उतना बेवकूफ नहीं होता शायद, माने वो अपने तरफ से भी सोचने लगता है। सो एनीवे दिस थिंग्स दैट it settled, but what happened was, the good thing was but still 3.04 lakh individuals created over 1 crore into their accounts in cash. All were highlighted. Anything above 2 lakhs got highlighted. And this 3.04 lakh crores ka 3.5 lakh crores ka, there were a lot of analysis done, income tax notices sent, and over 1 point some lakh crores penalty was received. So that black money नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं पकड़े, वो नहीं पकड़े. So that aspect also has been very well handled. And about 95% of these people who created 1 crore into their accounts were not even income tax assessees. See, when Aadhaar card and PAN card was linked, 32 crore PAN cards became 12 crore. समझे? But after demonetization, number of PAN cards have become 2-3 times. So more of the economy has come under overground. So anyway, the other new point that I want to tell you is, in 2014, 100% of our ink, 100% of our paper, 100% of our designs were all foreign. The notes were designed by famous engravers like Trento Ciunini and some Rudolph somebody. There were a lot of big names, big Italians only. अब इटली का चलता था उस जमाने में, तो क्या बात है। नहीं, 86 में 500 गांधी साहब को डिजाइन करना था। हमारे SPMCL में इधर ही नासिक देवस में एक अच्छा बंदा था जादव बोल के, जादव ने डिजाइन किया, बट स्टिल इट वाज सेंट टू ट्रेंटो चियनिनी। ट्रेंटो चियनिनी ने गांधी का वो फेस को इधर का फेस को इधर कर दिया। So what we did is we restored back Gandhi back to his face, and on the Gandhi's dress we put all Bharat, India and all that, because ये American note से हमने copy किया। American note में in God we trust, God bless America था, तो हम हमारे note पे भी डाल दिया। And ये जो note है कि the instruction of the government was कि हमको note, हमारा देश का note, बापू को हमारी कागज पर हमारी स्याही से हमारी डिजाइन में बनना चाहिए। सो ये बड़ा बोलने को आसान है, बट सुनने वाले को तकलीफ है, क्योंकि हमको करना है वो पूरा।
सो मगर एक साल तो कोई नींद नहीं कुछ नहीं हमने कर दिया. So we have our own design studio now. All the notes were designed in country and all these notes are full Indian and हमारा Indian culture को दोहराते हैं. उसके अंदर ब्रह्मी और प्रकृति स्क्रिप्ट में गुड स्टेटमेंट्स है और पीस हार्मनी एंड ऑल दैट and some very good temple engravings of famous southern temples are there in terms of some circles and all that. There are so many things like that which you have not publicized. I don't want it to become a controversy, but ये अपना देश का नोट है. It sort of expresses what this country stood for the last 5,000 years. So this is thing. I don't want to go on and on. These are the points that I wanted to tell you. But you can ask me anything that you want. An important point I want you to know. एक point important है. आप लोगों ने बोला किसी ने पूछा आपको कब मालूम? ठीक है मगर आप समझो कि इधर जो गवर्नमेंट का कंपनी था ये नासिक देवस में हमने उसको कुछ बताया नहीं. रिजर्व बैंक का जो है 80% करेंसी जो करता सिर्फ उसके एमडी को पता है. और हमारे लोग एक पिंक कलर का 2000 का नोट छाप रहे थे और 2000 लोग तो लोग बोले सर जी कुछ हो रहा है कुछ तो धमाका होने वाला है. मगर हमने बोला भाई ये देश का काम कर रहे हो तुम घर में भी नहीं बताना. 2000 लोगों ने सीक्रेट रखा है और ये सब कोई मैनेजिंग डायरेक्टर ये लोग नहीं थे आम वर्कर था. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग समझते हैं कि ऐसा है वैसा ये सभी जात के लोग थे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सभी लोग थे उसमें. बट द पॉइंट दैट आई वांट टू टेल इज दैट द पीपल आर रेडी टू वर्क फॉर द नेशन इफ गिवन द राइट कॉज एंड द राइट पुश एंड दे हैव डन द ड्यूटी. और मैंने भी एक किया. आई वांटेड में बिकॉज नेक्स्ट 50 days आई टोल्ड द वर्कर्स ये अनाउंसमेंट एक आएगा नोट बदलने का. उसके बाद आपको 50 दिन तक कोई छुट्टी नहीं होगी और 8 घंटे का शिफ्ट 12 घंटे होगी. और मेरे पास दिक्कत है कि 20-25% औरतें थी. तो मैंने बोला भाई अगर आप नहीं करना चाहते तो आप मत कीजिए. तो मगर ऑलमोस्ट बारिंग 1 or 2 बिकॉज ऑफ सम हेल्थ रीजंस ऑलमोस्ट ऑल द लेडीज ऑल्सो एग्रीड. नेक्स्ट 50 days till December 31st nobody took leave, no holiday, 12-hour shift and 2.5 times increase in production to meet the challenge of. अच्छा अभी पब्लिक क्या बोलता वो एटीएम के लिए नहीं किया उनका इतना भी सोच नहीं है. पूरा बकवास बात है. मेरे ऑफिस में 2 एटीएम रखे हुए थे बट प्रॉब्लम इज नोट नहीं है नो एटीएम में डालने के लिए. सो देन इन एनी मेजर इम्प्लीमेंटेशन देयर विल बी ए स्पिन डॉक्टर कमिटी. वो कमिटी क्या करता है कि पब्लिक को हम क्या बताना. जी एक चीज आपको बताता हूं कि पब्लिक को जानना चाहिए ये चाहिए वो चाहिए सोरा बकवास है. पब्लिक को कुछ जानने की जरूरत नहीं है बिकॉज पब्लिक हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. पीपल हैव टू बी टेकन केयर ऑफ. उसको सब चीज बताने से क्या फायदा. अब बॉर्डर में कोई है उसको बोलेंगे भाई ये पाकिस्तान से चाइना से आके आपको बंदूक से मार देगा वो तो क्या फायदा. यू प्रोटेक्ट हिम नो. सो पब्लिक को बताने की कुछ जरूरत ही नहीं है. सो इट वॉज केप्ट a big secret from the public. लोग बोलते हैं कि explain this, explain that. There is no need. More you explain, this problem ज़्यादा होता है. हमारे बॉम्बे में अटैक चल रहा था वो टीवी में दिखाई दे रहा था. पब्लिक जानती थी बस साथ में साथ वो लोग भी जानते थे. So that is the issue. So anyway, that was that period went off very well. I want you to know, Soviet Union failed because of demonetization brought about by Pavlov's reforms. The country failed. घाना नाइजीरिया में डिमोनेटाइजेशन करे आज तक वो कंट्री उसका फाइनेंशियल सिस्टम सेटल नहीं हुआ. IMF वाले मुझे कंसल्टेंट लिए बिकॉज वी आर द ओनली मेजर कंट्री विच हैज डन एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी अमाउंट ऑफ डिमोनेटाइजेशन विदाउट द इकोनॉमी फुली फेलिंग. This was a very very tough job. It requires very powerful political leadership and very strong-willed individuals to drive it. हम कुछ भी करो हमको ये करना है. बीच में कभी भी हट सकते. बहुत कोशिश करे बीच में हटाने के लिए. अभी बोलता हूं 2000 का नोट हटा क्यों. आपके पास है 2000 का नोट है क्या किसी के पास.
आए, अगर मैं 1000 रुपए दे दिए तो आप 2000 देंगे मुझे? नहीं देंगे। 11 notes, good. I have left with Shweta ji one form. Just fill that form, deliver it in Reserve Bank of India, your account will be created with that money. Mane, let that be the. Thank you, sir. But you have to give it in RBI Bhopal. और मैं चाहता हूं अगर 10 नोट से ज्यादा मत दीजिए, 9 नोट दीजिए, बाकी का नोट दूसरे नाम में दीजिए। ओके? क्योंकि ओरिजिनल डिमोनेटाइजेशन और बात का भी देयर वाज नेवर एनी इंटेंशन कि पब्लिक का पैसा लूटे, ये नहीं था। वॉट एवर पेपर्स माइट से एंड ऑल दैट पर्टिकुलर 2000 क्यों उठाए कि ओरिजिनली वी थॉट पहला हमको दिक्कत होगा नोट्स मैन्युफैक्चर करके मीट करने में डिमांड, वी विल मीट द डिमांड। वंस द डिमांड इज मोर, जितना भी एक्सेस प्रिंटिंग होता उतना 2000 हम खींच लेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ये सिलसिला चलता रहा। 2016 से लेकर 2020 तक हमको 50% ऑफ नोट आ गए। बाद में देखा कि एक भी नोट नहीं है मार्केट में। 2023 में कर्नाटका में इलेक्शन हुआ, पूरा कर्नाटका पिंक कलर हो गया। तो आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन इशू करा कि भाई अभी नोट्स वापस आएंगे बड़े पैमाने पे, इस नोट्स को वी हैव टू डिस्ट्रॉय, कीप योर CVPS मशीन्स, चेक वेरिफिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स इन ऑर्डर, क्योंकि वो छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा करके ब्रिकेट्स बना के भेज देते। एक हफ्ता वेट करे, एक भी नोट आरबीआई नहीं आया, पूरा जैसे एक वैक्यूम क्लीनर सक करके वापस चला। देन सरकार को पता चला कि जब कभी कोई चीज को नाकाम करना है तो ये नोट्स ऐसे निकलेंगे, मार्केट में उतरेंगे। तो देन इट वाज डिसाइडेड टू टेक दैट नोट्स अवे। 2000 notes are not demonetized. They are still legal tender. They have been withdrawn from circulation, which means that before some other announcement comes, only some 1 or 1.5% notes are left. आप लोग अपने पास जितने भी नोट्स हैं आप आरबीआई को दे सकते हैं। Now get me a hand mic. You can ask me any question that you want because I'm telling you, मैं आपको जो हुआ वो जवाब दूंगा। एंड बड़े बड़े लोग रहते हैं बट वो लोगों को कुछ मालूम नहीं है। I'll sit down. So, sir, very interesting session. Lot of new things that we got to know today. So, you spoke about the 2000 rupee note that was taken out of circulation. So, when it was taken out, there was, some information that every note, when it is printed, the expiry date is already decided. So, is that true? No. So, that Oh, I'll explain to you. Normally, notes, earlier they did not have a manufacturing date also. But in 2005, manufacturing date was introduced because जब कभी कहीं पे ज्यादा नोट्स मिल जाते हैं, वो बंदा बोलता था मेरा परदादा ने मुझे दे दिया ये नोट। तो इसलिए क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग डेट रहने से तो इनकम टैक्स वाला क्या बोलता है, देखो भाई ये नोट 2006 में बनी है तो तुम्हारे दादा तो नहीं दिए, या आपका इनकम कहाँ है 2006 का। अच्छा, 2000 नोट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप 5 लाख रुपए दे रहे हो तो May 23rd 2023 को आपके यहाँ 5 लाख का कैश होना चाहिए एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स। मनी दैट फॉर्म दैट वी सबमिट फॉर अबव 50 lakhs and 1 crore, कैश एट हैंड हम देते हैं ना, उसमें उतना होना चाहिए। मैंने गलती से मेरी भी इनकम थोड़ा उस तरफ भी है इसलिए थोड़ा जानता हूँ, मैं तो नॉर्मली रिटायर्ड आरबीआई ऑफिसर को नहीं जानना चाहिए। तो इसीलिए क्या करो, आप 10-15 आदमी 10 आदमी को दे के आप कर ले सकते हैं। बिकॉज आइडिया इज नॉट टू ट्रैप एनीवन, इट्स टू जस्ट गेट बैक द नोट्स। अच्छा, देयर इज नो एक्सपायरी डेट। द एक्सपायरी डेट ऑफ द नोट इज व्हेन इट बिकम्स सॉइल, इट इज विड्रॉन। करेंसी मशीन्स पे रन करते हैं, note fit for ATM will go for ATM, note unfit for ATM will be given back to RBI for destruction. So no note has got any date of expiry.
अरे भाई नोट लक्ष्मी है, पूजा करो। पहले जमाने में जलाते थे, पोल्यूशन बोले, आजकल काट देते। पर क्यों जलाते हैं, क्यों काटते हैं? नोट का वैल्यू तो होती है। अगर आप ध्यान से देखो नोट को, वो नोट का ऊपर अगर उसका नंबर में कुछ 786 निकल गया तो उसका रेट बढ़ जाता है। और 00 अगर आपके पास ये 00001 है, आफ्टर माय demonetization, all the heroics, I was presented the first note issued after demonetization. ये 00001, उसके आगे हम कुछ दिया नहीं किसी ने। नहीं, मगर ये because I was told that अगर आपको फेमस कर दिए इस बात पे, आपको कोई उठा के लेकर चला जाएगा, that you know so much about the currency. Yes, ma'am. Yes, sir. I have a question this side. Uh, What is the plan in future about what denominations will be left with? What is the future plan? Okay, it's like this. Normally, what happens is there is a coin currency. It's a very technical thing. Coin currency boundary बोलते हैं, समझे ना? हमारे बचपने में 1 रुपया का नोट अच्छा चलता था, 2 का चलता था, 5 का चलता था। आप कभी देखा नहीं था 1, 2, 5 अभी? हाँ? आपने देखा है, आपको देखा है क्या? 20-25 साल हो गए प्रिंटिंग बंद करके, आपका नोट नहीं देखा। मगर 1 रुपया का नोट 50 लाख तो प्रिंट हो रहे हैं, 5 मिलियन और 10 मिलियन प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि एक बेवकूफ बंदा ने आरबीआई दिल्ली जाके एक 1000 रुपए का नोट उस जमाने में देके बोला, मुझे आपका गवर्नर ने इधर एक आई प्रॉमिस टू पे द बेरर बोल के लिखा एंड गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मुझे करेंसी दीजिए। अभी मजे की बात यह है, ओनली 1 रुपी इज द करेंसी, बाकी सब बैंक नोट है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे नहीं पाया, तो वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट बोला जब आप बोलते हैं तो देना है, तो अप टू 1000 यू कैन पे इन कॉइन्स। सो नाउ व्हाट दे हैव डन इज वी प्रिंट अबाउट 5 मिलियन और 10 मिलियन 1 rupee notes. 2 rupee notes has been given up, 5 rupee notes is given up. 10 rupee notes was given up for 3-4 years, only 200-400, but this year we are printing 4 million because for some reason 10 and 20 rupee coins are not popular with public. माने पब्लिक ने खुद डिमोनेटाइज किया है उसको, हैवी होता है, क्योंकि करेंसी का क्या है, 10 रुपए का नोट 61 पैसे में प्रिंट हो जाता है, 100 रुपए का नोट 1 रुपया कुछ चिल्लर में प्रिंट हो जाता है, 500 का नोट 2 रुपया 84 पैसे में प्रिंट हो जाता है, मगर 10 रुपए का कॉइन 7 रुपया 53 पैसा होता है। बिकॉज कॉइन द फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू शुड बी क्लोज। अगर वो बहुत कम हो गया तो काउंटरफिट कॉइन बनता है, बहुत ज्यादा हो गया तो वो मेल्ट होता है। पर कॉइन की दिक्कत यह है, हर 5-6 साल के बाद वो इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू क्रॉस कर देती है। सो मैडम, इन आंसर टू योर क्वेश्चन, we are going to have 10 for some more time, 20 for some more time, 50, 100 more, but for some reason 200 very popular with public, but people are saying no इसको कम करना है, 100 को बढ़ाएंगे, 500 रहेगा, 1000 नहीं रहेगा, 2000 नहीं रहेगा, 500 नहीं जाएगा, क्योंकि हर 10 साल को करेंसी बदलता है देश, ये आपको पता होगा। 1995 में लैंड कैपिटल अशोका पिलर हटके गांधी जी आए थे, 2005 में गांधी कंटिन्यू हुए, 2015 में गांधी न्यू महात्मा गांधी नोट्स आ गए, 2016 में अभी न्यू महात्मा गांधी नोट्स आए। और जब कभी हम क्या करते हैं, एक टाइम फीचर बदलते हैं, ये सिक्योरिटी फीचर जैसा ये थ्रेट रेट वगैरह, और एक टाइम हम डिजाइन बदलते हैं वो नोट के पीछे जो कुछ भी रहता है, और कभी कभी वो पीछे का मोटिव बदलते हैं, जैसा हम लास्ट टाइम रेड फोर्ट ये लाए। अभी का नोट में जो मैं बोला 51 फीचर जबरदस्त फीचर है, इसीलिए उसको कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड वन समथिंग कॉल्ड ICS, इनविजिबल कैरियर स्क्रीन, माने जो आपके आंख को दिखता है वो है नहीं उधर,
और जो उधर है आपको दिखता नहीं। गांधी की सर इधर से इधर मूर्ति है, नॉट दिस वन, द वन इन दी विंडो। और एक ग्लास रखने से गांधी नहीं दिखेगा, उधर अशोका पिलर दिखेगा, भारत इंडिया दिखेगा। और एक फीचर हमने रखा, कंटिन्यू हो रहा है, मगर उसको पॉपुलराइज नहीं करे, बिकॉज आई वाज द प्रोजेक्ट लीडर ऑफ NEFT RTGS एक्सपेंशन इन चक्राकेशन। आई एम नोन फॉर इलेक्ट्रॉनिक। आप अगर हमारा नाम गूगल किए तो इलेक्ट्रॉनिक इसमें ज्यादा आता है। ओके, मैंने बातों बातों में बता दिया था, गूगल करने से मेरा नाम आ जाता है। ओके तो ये मेरे हिसाब से क्या था कि हमारे पास एक ऐप होना चाहिए, जैसा हम नोट पर रखते को पता चलना चाहिए कि नोट सही है या नहीं। और बिलीव इट और नॉट, हमने ऐप बनाया, बट नॉर्मली एनीथिंग ऑफ मेजर इंपोर्ट इन गवर्नमेंट यू हैव टू बीटा टेस्ट इट ऑन पीपल। तो ये हमारे दोस्त रहते हैं, रॉय भी सबके बिठा दिए। तो उसने एक बंदा हाथ उठाया, सर जी अगर हमारे प्यारा पड़ोसी देश एक चोर ऐप बनाएगा जिससे गलत नोट सही और सही नोट गलत दिखेगा, और वो ऐप ऐसा ही होगा और वो डाउनलोड होगा, तो आम आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमारा 6 महीने का पूरा पसीना बर्बाद। बट दैट फीचर इज देयर इन द नोट, it says tick if the note is correct, because we have put in some dots here and there and all that. And then for the blind people were very unhappy with the हम छोटा सा डॉट को स्क्वायर वो ये बना के रखे थे। वो बोले ये नहीं चलता, हमको लाइंस चाहिए, हम हाथ ऐसा चला के हम देख लेते हैं। तो अभी आप देखो सेरेटेड लाइंस रहते हैं हमारे नोट्स पे, तो ऐसा। यस, तो आपका क्वेश्चन आंसर ना मैडम? राइट, आपको 10,000 का नोट चाहिए, आप इंतजार कर रहे हैं, नहीं आएगा। चलो। हेलो सर, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। बैक। हाँ। हेलो सर। सर आपने बोला कि 2 कंट्रीज सरवाइव नहीं कर पाए थे डिमोनेटाइजेशन, सम ऑफ 2 कंट्रीज। सो इंडिया में पैरेलल इकोनॉमी है, इसलिए वाज इट वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर सर्वाइवल ऑफ द डिमोनेटाइजेशन ऑल द टाइम? हाँ, एक्चुअली हम भी थोड़ा ये बात बताया नहीं, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप सभी लोगों ने किया है और आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो इट वाज डिस्कस्ड, सोवियत यूनियन में ऐसा हुआ। मैंने एक आदमी को आप डरा देंगे कि सारा पैसा जाएगा तो वो कुछ भी कर देगा ना, बिल्ली को दीवार के तो शेर बन जाती है। तो वी डिसाइडेड टू गिव व्हाट इज कॉल्ड एज वेंटिलेटर्स। Ventilators are petrol bunks, highway tolls, pharmacies, hospitals, ताकि थोड़ा गर्म हवा बाहर जाते रहे। This was wantonly done, knowing very well there will be leakage. So that took care of lot of dissatisfaction. थोड़ा पैसा गया, बढ़ गया ना। आप अपने भाई को देते हैं 1 लाख बदलने के लिए, तो वो थोड़ी देगी वापस 1 लाख। 80-90 हजार तो मिलेगा बस, उसके आगे तो नहीं मिलेगा। नॉर्मल रेट तो 80,000 था। क्योंकि मेरे भाई ने बताई पूरा करके, उसको पता था मैं नोट मुद्रण का MD हूँ। बोलिए मेरे को सर 1 लाख रुपए बन गए, 5 लाख में मेरे बेटी का ये वो डाला, मैं 1,50,000 ऐसा डाल के दिया, आपका कुछ होता तो दीजिए। मैं बोला मेरा कुछ होता तो मैं ये इधर इधर काम क्यों करता। तेरे जैसे भाई को लगाया, यही तो बात है। हमारा भाई हम शेयर करते हैं। अमिताभ बच्चन का भाई मेरा भाई एक है, बस वही हमारा खास खूबियत है। सो ऐसा है। देखो नाइजीरिया का ये सब लोग क्या करे, दे गेव टाइम बट दे डिड नॉट गिव हाउ टू वेंटिलेट द होल डैम थिंग। They have not thought it through. See, I was involved in one operation of demonetization in Liberia post-retirement through an IMF program. I took care of all these things that went off very smoothly. Because तुम्हारा बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया लोगों को लूटने का आइडिया है, या आपको बदल के इसको इकोनॉमी को मोनेटाइज करना, ये करना वो करना, एंड आइडेंटिफाई द पीपल।
ये बड़ी बात है। माने हम एक ऐसी शहर में आ गए। एक्चुअली सवेरे में बताया था कॉलेज में कि ये महाकाल का ये जो इंदौर में कभी सोचा नहीं, मेरे जहन में इंदौर तो कभी है नहीं। अब हैदराबाद वालों को इंदौर कहाँ से आता है, मुंबई है, चेन्नई, बेंगलुरु, बड़े बड़े शहर हमारे करीब है। तो इंदौर तो नहीं था, तो इंदौर बुलाए तो महाकाल चले गए थे कल। पर इंदौर की एक और खूबी है, आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ऑफ ओवर यू आर सीइंग सिटिंग विद इनकम टैक्स पीपल, भाई ये पैसा आया कहाँ से? अब ये हमको चौंका दिया। हम क्या समझते कोई अंबानी अदानी बॉम्बे से दे दिया होगा 10,000 करोड़, ऐसा नहीं हुआ। पैसा ज्यादा आया हमारा हैदराबाद से सबसे, क्योंकि द मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ऑफ द कंट्री आर इन हैदराबाद एंड वो कैश पे चलता है। और छोटा सा शहर कोल्हापुर महाराष्ट्र, और थोड़ा छोटा नहीं ज्यादा बड़ा नहीं इंदौर, आप भी ऊपर थे। तो अभी मुझे पता चल गया, एक 3-4 महीने तक सारे पेट्रोल बंक सिर्फ कैश पे पुराने पैसों पे बेचते थे पेट्रोल, सारे ऑपरेशन पुराने पैसे पे हुए, सारी दवाइयां पुराने पैसे से खरीदी गई। All those people must have become very rich. Yes sir, you ma'am, yes. नमस्ते सर, तो ये ज्वेलर्स को पेट्रोल पंप इन लोगों के लिए ओपन था? नहीं, ज्वेलर्स के लिए नहीं था। पर सर बहुत ज्वेलरी सेल हुई। अरे भाई वो गलती क्या था, 8 बजे अनाउंस करके 12 बजे बोला था ना, तो इसके लिए ज्वेलर्स ले लिए, मगर सारे हमारा मुसद्दीलाल हैदराबाद में 100 करोड़ के फैन में लटक रहा है वो बेचारा। सर क्योंकि ज्वेलर तो 5 दिन, अगले 5 दिनों तक भी ले रहे थे। लेते रहे हैं बैक डेटेड करके, बट द एनालिटिक्स कॉट मोस्ट ऑफ देम, 90% वेर कॉट ज्वेलर्स। और सर जो बैंक अकाउंट्स होते हैं, जैसे मेरी दादी अपना अकाउंट भूल गई, उनके पास पासबुक भी नहीं है, उनका जो मनी है वो आरबीआई में चला गया, तो वो कैसे वापस आएगा? आरबीआई कहाँ चला गया ये नहीं पता, बैंक ने बोला कि पैसा गया आरबीआई में, आप पासबुक लाइए, उनके पास पासबुक नहीं है। अरे नहीं, सुनो अभी आप जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं डिमोनेटाइजेशन का नहीं है। नहीं, आपकी दादी है, उनका अकाउंट बैंक में है, समझो 5 लाख है, और 10 साल तक किसी ने छुआ नहीं, तो यस आरबीआई का अकाउंट में जाता है, आरबीआई के वेबसाइट में पब्लिश्ड है। आपने नहीं देखा तो कोई अपना सीए को पकड़ो, काम पे लगाओ, एक 25-50 हजार उसको भी दो जो काम करता है, तो वो उसमें पकड़ेंगे, देन यू गो एंड प्रूव दैट यू आर द लीगल हेयर्स ऑफ दैट पर्सन। समझे? दैट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग दीज डिपॉजिट्स, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, एंड नाउ दीज आर पुट ऑन द आरबीआई वेबसाइट। जो भी बैंक है उस बैंक में नाम से चेक करो। मैं इतना कुछ बताया, एक 5% इधर भी भेजो। अरे भाई, रिटायरमेंट के बाद मैं भी कंसल्टेंट हूँ, काजा सुधाकर कंसल्टेंसी एक बना के रखा हूँ, जीएसटी पे कर रहा हूँ। सर जब लास्ट डिमोनेटाइजेशन हुआ तो एक शॉक जैसा था, सब लोग गैस कर रहे थे और सुना, और फिर सबने कहा क्या करें, अभी कुछ ऐसा होने वाला है क्या? तो ये कैसे मालूम चलेगा नॉर्मल सिटीजन्स को? क्या इंडिकेटर? जल्दी से अपने पास जो भी पैसा है उसको सोना वोना में कन्वर्ट कर लो। क्या इंडिकेटर्स देखना चाहिए सिटीजन्स को कि ये हो रहा है तो मतलब कुछ होने वाला है? नहीं, डिमोनेटाइजेशन इज अ वेरी रेयर occurrence, because I'll tell you the problem. 86.5% of all notes are in 500. We are today having around 30 lakh crores of 500 rupees. That is 60 billion notes. है ना? 60 billion notes is 30 lakh crores. 60 बिलियन नोट्स 500 का हमको छापने के लिए 3 साल लगेंगे। अगर इस दोबारा 500 बनाए तो 500 को अगर हम हटा के 200 बनाया
तो हमको 150 बिलियन बनाना पड़ेगा। अगर उसको 100 बनाया तो 300 बिलियन बनाना पड़ेगा। उतना हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, तो शायद नहीं होगा। नहीं, वो मेरे जैसा कोई पागल रहना चाहिए उधर, हाँ, ऐसे सजेशंस देने के लिए। तो कोई दूसरा आदमी ऐसा होना चाहिए कि नहीं ये करेंगे और उसको वापस ले लेंगे। वो जब डिसीजन लिया तब भी बोला इसको वापस ले लेंगे, तो वो नहीं होता है, मुश्किल है। अरे नहीं भाई, हम लोग, हमारा सोच में क्या था, हम किसी का पैसा नहीं ले रहे ना, आपको सिर्फ बैंक अकाउंट में डालना था। कई के लिए बदलने के लिए जा रहे थे, आपको सिर्फ बैंक में डालना था। ना, वो क्यों बोले तो कि बिकॉज यू हैव नॉट पेड टैक्स ऑन दैट एंड इट्स ब्लैक मनी। अब मेरे जैसे आदमी को तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे मैडम का कोई दिक्कत नहीं, मगर हम, हमारी कहानी हम सुनाए तो अब हम चप्पल से हम खुद को मार रहे हैं। हमारे घर 2 साल के बाद क्लीन करने से कोर्ट में 15,000 मिल गया। अब मैं किसको जाके बोलूं, मेरे 1 साल पहले पता था। हालांकि 5 दिन के बाद डिमोनेटाइजेशन के बाद जॉइंट सेक्रेटरी ने फोन करता, बोलता दिल्ली से, काजा साहब आपने कुछ पैसे डाले बैंक में? मैं बोला मेरे पास नहीं है। तो आपके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से एक 3-4 हजार रुपया ले, पुराना नोट दाखिल करो। हमारे ऐसे बनावटी चीज करा और बाद में अपने घर में 15,000 मिल गया। Sir, I've got 2 questions. One is, it was popularized कि demonetization इसलिए लाया गया कि स्विट्जरलैंड बैंकों से नहीं, ब्लैक मनी और पूरा स्विट्जरलैंड नहीं आएगा और इकोनॉमी का ब्लैक मनी would become white money. स्विट्जरलैंड नहीं, ब्लैक मनी। स्विट्जरलैंड का पैसा नहीं, आप बोल रहे हैं स्विट्जरलैंड का पैसा एक लाइन कहीं पे भी नहीं है। So was it actually affected and what quantum? See, RBI's point was black money, counterfeit money that has been achieved. Black money over 1.5 lakh crores has been received as penalties, and we also brought in fact on that day itself 3 lakhs was the limit suggested by Reserve Bank board, which the cabinet did not accept. नहीं तो वो 3 लाख रुपया आता था, अभी 2 लाख आ गया। एक दिन में आप 2 लाख से ऊपर कैश नहीं दे सकते, और किसी एक पर्पस के लिए 2 लाख रुपया कई और दिनों में नहीं दे सकते। सो दैट इज, सी देयर इज नथिंग लाइक अचीविंग एवरीथिंग फुली, क्योंकि जब तक तुम्हारा दिमाग चल रहा है जैसे आप चल रहा है तो ब्लैक मनी तो रहेगा ही, क्योंकि आप 35% पे नहीं करना चाहते। मेरा भी 1 करोड़ के ऊपर 42% के टैक्स जाता था, और मैं देखता हूं कि बाहर जो पान वाला बैठा है वो पैक नहीं करता है, वो मेरे से ज्यादा कमाता है। वो एडवोकेट नहीं कर रहा है, डॉक्टर नहीं कर रहा है, मगर हमको हर जो पैसा कंसल्टेंसी में आता है, माइनस दिस माइनस दैट माइनस से आता है, वो भी जीएसटी भी देता है, हम जीएसटी पे कर देते हैं, वो क्या 10% वो भी डिडक्ट करके देता है। वो हमारे एएस में आ जाती है, तो वो सीधे 10x10 वो एएस में गिर जाता है हमारा टोटल इनकम, और मुझे कुछ करने की बात नहीं है, वो मेरा एक रिटर्न भी बना के दे रहा है मुझे। वो तो है। तो आजकल मैं क्या समझा कि ये रिटर्न से एग्री करो तो हम सेफ है। Yes. And secondly, sir, there were popular articles coming कि कचरे के डिब्बे में करोड़ों रुपए मिले ना सैड, and many places where popular. No, I tell you the truth, that the truth is very harsh. कि you are only talking of the notes कुछ मिले। Every bank branch में हर एक दिन लाखों रुपये काउंटरफिट नोट निकाले गए, कोई किसी ने मुंह नहीं खोला। 100 में 30 नोट खराब वही कर दिए, वैसे कितने लाख करोड़ हट गए किसी को पता नहीं। गंगा नदी में बह गए नोट, कुछ लोग जला दिए नोट, ये सब हुआ है देश में। See, it is like that. It's not that thing. I want you to know that something like demonetization is the last thing that we do. अरे भाई, हमने तो कोशिश किया ना, नॉन डिस्ट्रप्टिव विड्रॉल कोशिश किया, बाद में लोगों को बोला बैंक में डालो, बाद में हमारे आईबी और रॉ वाले बोले पाकिस्तान का फॉन्ट और हमारा फॉन्ट नोट का एक ही है, इसका फॉन्ट बदलो। 2015 में हमने फॉन्ट बदल दिया, एक्सप्लोडिंग फॉन्ट कर दिया।
फिर बाद में क्या देखे, एक ही नंबर के नोट, वो लोग एक्सप्लोडिंग फॉन्ट उनका मशीन पे नहीं रहा, तो एंड वी हैड ए नो एनडीए यूनिक फॉन्ट, तो वो नहीं मिल रहा था, तो वो लोग क्या करें, कुछ नोट्स लेके उसका हाई रेजोल्यूशन फोटो लेके प्लेट बना के एक ही नंबर का नोट मल्टीपल आने लग गए मार्केट में. So many everything that could be tried where people are not put to difficulty was tried, but it did not succeed. तो in the end उसको करना पड़ा. अच्छा ऐसा बोलो, अभी अभी ये बात भी मुझे कहना पड़ेगा, पर थोड़ा अच्छा बात नहीं है, मगर भी लोग बोलते 100 लोग मर गए. भाई 100 लोग मरे क्यों? वो लोग लाइन में थे इसलिए मरे, उसको कोई गोली नहीं मारा, कोई लाठीचार्ज नहीं किया, और मरना था तो लाइन, उस लाइन में, नहीं तो सिनेमा की लाइन में मरता, नहीं तो रेशन की लाइन में मरता. नहीं, कल बिहार में इलेक्शन हुए, कितने लोग मर गए? मुंबई के ट्रेन में 11 लोग मरते हैं हर दिन, तो मैं ट्रेन बंद करूं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 15,000 ऑफिस में 1-2 लोग मर जाते हैं एवरीडे, तो स्टेट बैंक बंद करें? सी, बिकॉज ऑफ दैट पीपल हैव नॉट डेड. और एक दूसरा, सब खत्म हो गए जो डेली वेजेस करते हैं. ये इसका तो थोड़ा सच्चाई तो है कि लॉट ऑफ ब्लैक मनी वाज एक्चुअली इन द इकोनॉमी. ऐसा नहीं कि ब्लैक मनी इकोनॉमी नहीं चलाता, ब्लैक मनी से इकोनॉमी भी चलती है. टैक्स हुए तो सरकार के हाथ में पैसे आते, नहीं तो जो आदमी स्विट्जरलैंड में पैसे लगाता है उसको तो उड़ा दो, माने दूसरे देश की भलाई कर रहा है. अगर आप ब्लैक मनी से अपने देश में फैक्ट्री लगा के रोजगार देते हो तो आप देश की भलाई होती है. तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ illegal activities. So this activity, so nobody, yes, but lot of people, nobody lost employment. A few days wages people have lost. That much I can tell. काम रोक दिया गया डेली वेजेस का कि हमारे पास अभी कैश नहीं है, बट वो 4 हफ्ते के लिए था. अच्छा, हम लाइन में ठहरे, कुछ लोग बोलते हैं भाई पूरा मिडिल क्लास रेशन शॉप की लाइन में गुजारा बचपन में, मैं भी पैसे घर में रहते मगर शक्कर नहीं मिलता आपको, आपको रेशन शॉप के लाइन में ही मिलता है. सरकार ने तो लाइन में ही खड़ा किया लोगों को. अगर आप आज भी पिक्चर के लाइन में ठहरने में कोई दिक्कत नहीं, आइकिया शॉप के लाइन में ठहरने में दिक्कत नहीं, मैकडॉनल्ड्स के लाइन में दिक्कत नहीं, पैसे लेने के बैंक का वो भी एक टाइम बड़ा दिक्कत. ये दिस क्रिटिसिजम्स हैव नॉट मच वैल्यू टू बी एनी बिग चेंज. जीएसटी क्या रहा? जीएसटी आसान था क्या? जीएसटी बहुत दिया. आज भी मुझे वो जीएसटी से बहुत परेशानी होती है. अरे आओ भाई, हम कभी रिटर्न नहीं दिए, महीना को कुछ भरो, ये करो, क्वार्टरली रिटर्न दो, एनुअल रिटर्न हो, वो पॉपुलेट होता ही नहीं वो सारा एनुअल रिटर्न. नहीं ना, यूर सीए ना. हाँ, वो तो अप्रैल में जून कोशिश करते रहो. सर आई हैव अ क्वेश्चन. सर हमने देखा अभी कि डिमोनेटाइजेशन से बहुत फायदा हुआ है, टेररिज्म जैसी चीज़ों पे डिमोनेटाइजेशन ने इफेक्ट डाला है, बट फिर हम इसको रेयर क्यों कहते हैं? अगर इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा है, इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है, तो हमारी कैपेसिटी टू गो फॉर डिमोनेटाइजेशन अगेन. नहीं. हाउ डज दैट जस्टिफाई सर? Because so many other things have come into position, so you should know before demonetization what government has done. They brought in an act, Benami Property Act. Then all the poor people's ka accounts khole. 500 million accounts were opened under Jan Dhan. Then they gave direct money transfer to people. DBT accounts being created. Then they linked Aadhaar card to the bank accounts. Then they linked the PAN card to the Aadhaar card to the mobile. So many steps were taken. Nowadays, you know what? अभी जो हादसा हुआ दिल्ली का, क्या था? कोई बंदा ने अपनी पब्लिसिटी के लिए पोस्टर लगा रहा था श्रीनगर में. ये कौन पोस्टर लगा रहा है? जयेश का बोल के उसको पकड़े. उससे एक बंदा निकल गया कोई दूसरी जगह, तीसरा बंदा निकल गया, चौथा बंदा. फाइनली क्या हुआ? ये बंदा सवेरे जब घर से निकल गया, उसकी मोबाइल पे आ गया भाई तेरी पहचान हो गई है. उसके पास अंदर माल है गाड़ी में, और उसको पता है वो रात कहीं जाके सो नहीं सकता है,
I am telling you one thing. All of you are already electronically, digitally mapped. डराना नहीं चाहता हूं, मगर ये सच है. आप कहाँ जाती हो, कहाँ आती हो, आपके दोस्त कौन है, everything with whom do you correspond, everything is already digitally mapped. So things are a bit difficult now. You have to fly really below the radar now. You can't give big parties and all. ऐसा क्यों? You must have heard of a guy called Abdul Karim Telgi of the Telgi scam. You know how he was caught? 15 साल तो अपना राज किया, वो पकड़ा नहीं किसी ने. Yes, he showered 90 lakhs of rupees on a bar girl, and the message immediately spread among the police कि ये कौन सा बंदा है जो एक बार गर्ल पर 90 lakhs. वो भी कब? 1999, 2000, 2001. काफी पैसा था वो. This कीर्तिकांक्षा कि मैं मशहूर हूं, अगर वो देश का पोस्टर नहीं करता उधर, ये लोग क्या क्या कर देते दिसंबर से किसी को नहीं मालूम. बट जब एक बंदा मिल गया, इमीडिएटली पूरे कॉन्टैक्ट्स तो आ गए. एंड ऑल ऑफ अस वर सरप्राइज्ड बिकॉज इट इज नॉट लाइक दो स्टोन पेल्टर्स एंड 500 रुपीज एंड काउंटरफीट. सभी के सभी डॉक्टर्स हैं. जो डॉक्टर जो उड़ गया उसका 4 लाख महीने का तनख्वाह था. प्राइवेट प्रैक्टिस, दे आर ऑल वेल टू डू पीपल. सो ऐसा है, ये ऐसा नहीं हो सकता, नहीं बोल सकते, मगर द फैक्ट ऑफ द लाइफ इज दैट people are all mapped, that you know. And please keep that mobile away from you when you talk to some. Now if I want, both you and I will stand somewhere and discuss for 20 minutes about purchasing a TV and which TV is very good. You go back, your Facebook and all, you will get TV ads. And if you have smart TVs in your house, don't have it in your bedroom. Sir, one more question. Sir, one more question. सर, इंडिया ने कभी प्लास्टिक नोट का नहीं सोचा, जैसे कटना? अरे भाई, प्लास्टिक नोट का हमने सोचा था और उसका एक बड़ा टेस्ट किया था, उसका सर्कुलेशन टेस्ट किया था. सर, प्लास्टिक नोट दूसरी नोट से जल्दी मरती है और वो प्लास्टिक नोट के ऊपर सिक्योरिटी फीचर नहीं बैठता, मगर सुंदर दिखता वो देखने में. अगर वो पानी में खराब नहीं होता बोलते हैं, मगर आग में देखो, हमारी दिल्ली की 46 डिग्री हीट में उसको प्लास्टिक नोट, सारे नोट चिपक जाते हैं और एक नोट बन जाता वो, और वैल्यू नहीं मिलता है उसका. सो प्लास्टिक नोट इज नॉट एन इको फ्रेंडली नोट, बट स्टिल pressure of the plastic note manufacturers is so high. See, every economic activity has got its pressure lobby in the government, and the government represents the people. So yes, we might have some low denomination plastic note. Sir, I have a gas agency. You have it? A gas agency, sir. Gas agency, yeah, good. So I have actually seen demonetization the way you just explained as in one of the source to, you know. The gas agency can take Yes. old notes. अरे भाई, then आपके 2-3 घर बन गए, चलो. Sir, my question is that you've given some data about the counterfeit notes. So I just want to know कि demonetization के टाइम पे वो क्या रेशियो था और आज की डेट में अगर हम डिमोनेटाइजेशन के पहले 2014 में 8.6% था. कैश टू जीडीपी रेशियो 14% था. आज के दिन कैश टू जीडीपी रेशियो 11.6 है और काउंटरफीट 1.4 नोट्स टू मिलियन है. बहुत कम हो गया बिकॉज ऑफ दिस न्यू फीचर्स एंड ऑल. आवर नोट इज वेरी डेंस. It's very dense. You take another foreign notes and उसको आप इसमें चलाओ तो उसमें बहुत स्पेसेस रहते. ये नोट बहुत डेंस है. Sir, very small question. जब ये demonetization हुआ था, उस टाइम पे we saw that lot of 500 के counterfeit notes were coming in the market. No, counterfeit तो आएगा, Sir, but number is less. 500 के notes में रेशियो कम हो गया है. Why that happened? Like, नहीं, बात क्या बोल रहा हूँ कि
जहां पे नोट है वहां पे काउंटरफिट होगा, जहां पे एक चीज अच्छा बिकती है, एक अच्छा अगर पोलैरिटी स्वीट अच्छा बिकता है तो पोलैरिटी स्वीट काउंटरफिट हो जाएगा. A counterfeit is actually a kind of a commendation and respect given to the original. And if somebody is very beautiful and dressing in a particular way, and some people are imitating, that is actually, तो ऐसा ही counterfeit होता है. Counterfeit. अच्छा, which currency is the most counterfeited currency in the world? US dollar. Why? वैल्यू अच्छा है, सारे वर्ल्ड में चलती है, तो ऑब्वियसली काउंटरफिट होगा. और दो देश वो 80% ऑफ काउंटरफिट कर रहे हैं, वो उसका कौन? चाइना नहीं भाई, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया की पूरी फॉरेन एक्सचेंज तो काउंटरफिट पे चलती है. सो काउंटरफिट नोट्स आर देयर. यप. So last question. लास्ट क्वेश्चन. गुड. फ्यूचर ऑफ कॉइन्स इन इंडिया. हाँ, फ्यूचर ऑफ कॉइन्स है कि नहीं है? future of coins, let me tell you, future of coins as well as digital. Yes, sir. Okay. The fourth objective of demonetization was increase in digital transactions. Now, honestly, with a hand on your heart, tell me, was that achieved or not? अरे कॉइन को आ रहा हूं मैं, आपका पॉइंट पीछे चला गया अभी. हाँ, India has 50% of all the digital transactions in the entire world, which includes United States, China, Japan, entire Europe, Australia, Canada. समझे? So जो भी लोग मजाक करते हैं ना, ये क्या किया, वो क्या, ये क्या, वो हो गया है. We are already there, right at the top. Future of currency की बात करो, कॉइन की क्यों बात करते हैं? फ्यूचर ऑफ करेंसी रहेगा, करेंसी कहीं नहीं जाएगा. A whole lot of people don't use this thing. What is the problem with digital currency? It gives a trace of you in every transaction. One look, if you have paid all your purchases through big basket, और हम एक अच्छा, if I am a good computer man, 5 मिनट में हम निकाल लेंगे आप कौन सी चीज कब कब क्या क्या खरीदते हैं, घर में क्या क्या खाते हैं, क्या सब्जी, आपका शैम्पू क्या है, ये क्या है, हम निकाल देते हैं उसको. Why should we leave our fingerprints everywhere like that? और आप कहाँ जाती हो, किस दुकान में खरीदती हो, ये सब पता चल जाता है. So इसके लिए lot of people, including me, although I was an evangelist for digital transactions, I don't like to leave such traces. So I faithfully withdraw 10-20,000 from ATMs and spend money where I want. Acha, for example, I don't smoke or drink, but if I'm a cigarette smoker and if I buy my cigarettes through UPI, my insurance might go up. ऐसा है. देखो भाई, I told Shweta madam कि whenever I come on any education thing and all, please don't go me out of pocket, although I can easily afford it, because you just imagine I've flown my son and daughter for this and I don't pay for them, so my expenditure for this is much more than what you're paying for me for coming. मगर ये तो कंसल्टेंसी हो गया है यार, ये मेरा, आई एम ए कंसल्टेंट, आई वांट टू गिव यू माय कार्ड. आई एम ए कंसल्टेंट. ये देखो, ये कार्ड इधर रखता हूँ, आप लेके जाओ. आपको ऐसे आइडियाज देते हैं. अच्छा, एनीवे मैडम, कॉइन्स विल, द प्रॉब्लम इज द कॉइन करेंसी बाउंड्री, वी आर ट्राइंग टू लिफ्ट इट. अभी 1 रुपया का कॉइन वी फाउंड ज्यादा नहीं चल रहा है, 5 रुपया चल रहा है, 10 रुपया धीरे धीरे एक्सेप्ट हो रहा है, मगर 20 रुपया तो थूक रहे लोग. सो धीरे धीरे हम थूक पहुंच के यूज करेंगे अभी, और धीरे धीरे उसको चलाएंगे कुछ देर. बट कॉइन्स भी चलेंगे, चेंज चलेगा. बट वन स्ट्रेंज डिसीजन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 239 इयर्स के बाद पेनी 1 सेंट का सर्कुलेशन और प्रोडक्शन अभी 2-3 हफ्ते पहले रोक दिया. हम तो
1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा बनाना बंद कर दिया और डिमोनेटाइज कर दिया अप टू 25 पैसा। समझे? बिलो 25 पैसा इट्स नॉट मनी। 50 पैसा स्टिल मनी, सिर्फ कलकत्ता में चलता हूं। माने वो लोगों को 25,000 लगते हैं कैचअप करने के लिए। सो और ये 1 रुपया, आजकल 1 रुपया तो भिखारी भी नहीं लेता। माने वो बोलता सर आप 1 रुपया दे रहे तो शायद आपको पैसे जरूरत है, ये 10 रुपया आप रख लीजिए। ये बात है। So one last question. हाँ। Sir, interest rate fluctuates every now and then. Yes, So, ma'am. Is it dependent on currency or on printing or anything? No, no. Maybe on demonetization? No, no. See, it's like this. Government of India sets right the fiscal policy, which is your tax, wax, and all that. Reserve Bank of India, monetary policy, interest rates. Interest rates are usually dependent upon inflation. And inflation is calculated across a basket of things. If inflation is high, we increase the interest rates, so that make it difficult for people to borrow money and cool down the economy. If the interest rates are low, our repo rate is low, and तुम्हारे home loan सब कम हो जाते हैं, गाड़ी का लोन। But जो retired लोग होते हैं उनके लिए उनका interest भी कम हो जाता है। There's two sides to the thing. Our mandate of Reserve Bank, sorry, I'm going on telling I am a retired person, so I cannot talk on behalf of RBI, but the mandate of RBI is 4 to 6%. And believe it or not, the present inflation rate of 0.25% is perhaps lowest in independent Indias. ये लोग जब बोलते हैं ना महंगाई बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, नहीं बढ़ा। 2013 में आप देखिए फ्री कमर्शियल घर का गैस सिलेंडर 1200 था, आज के दिन 900 है। आपको उस समय में अगर 40 रुपए में शक्कर मिलता तो आज शायद 55 रुपए 60 रुपए में मिलता होगा। नमक कितने में मिलता है तो 20% मोर पे मिलता है, उतना नहीं है। ये लोग इसीलिए मैं बोला ना कुछ लोगों को जीतने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कुछ बोलते हैं। वो आम आदमी बेवकूफ नहीं है ना, ही विल जज इट। अगर इसीलिए ज्यादा क्लेम जो भी करता है उसको क्लेम प्रूव करना मुश्किल हो जाता है, वो पकड़ा जाता है। भाई मैडम, गोल्ड इज द बेस्ट थिंग यार। मैं चप्पल मार लेता रहता हूँ हर वक्त कि जब मैं रिटायर हुआ मुझको इतना पूंजी मिला, तो हमारा एक डिप्टी गवर्नर साहब से मैं पूछा, मेरा खास दोस्त भी था, वो बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो वो बोला नहीं सुधाकर, हम फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे इतने 100 बिलियन है, हम लोग इतना गोल्ड में रखते, इतना बॉन्ड में रखते और इतना इसमें रखते, तू भी क्या कर, इतना गवर्नमेंट बॉन्ड में रख और इतना म्यूचुअल फंड में रख और इतना गोल्ड में रख। ठीक है, अब समझो हमको 3 करोड़ मिले रिटायरमेंट में, हमने 1 करोड़ गोल्ड में रखा समझो। और गोल्ड में रखा बोल तो फिजिकल गोल्ड नहीं, वो जमाने में ETF बोल के आता था, वो अच्छा था, 2.5% रिटर्न भी आता था। 8 साल के बाद आपको यू विल गेट नो कैपिटल गेन्स। उसका 8 साल अब हो रहा, वो 28,800 रुपए का 1 किलो गोल्ड हम जो लिया है समझो, वो क्या हो गया जी? 28,000 वो 1,27,000 को जो तोला उतना हो गया ना, माने हमारा 1 करोड़ 4 करोड़ हो गया ना। अब हम रोज समझते हैं, मेरे दोस्त को बोलता हूं मैं, यार क्या बोल दिया यार, वो सारा पूरा 3 रख देता उधर। वो बोलता अगर यही गोल्ड 28 से 14 होता तो तू मेरे घर में खून करने आ जाता ना। So this is the problem in life I have found यार। मैं जब कभी एक लाइन में ठहरा रहता हूँ, दूसरी लाइन तेज जाती है, मैं उधर जाता हूँ तो ये लाइन तेज निकल जाती है। Okay,
क्या है भाई? अभी अभी ये लास्ट बिकॉज आपने अभी कहा कि आपको आफ्टर रिटायरमेंट आपको लगा गोल्ड इन्वेस्टमेंट बेस्ट था, तो एनी रिकमेंडेशन हम लोगों के लिए कि अभी बेस्ट इन्वेस्टमेंट? अरे यार वो ये इन्वेस्टमेंट क्या बोलता हूँ, बिकॉज सीएस भी बैठे हैं इधर। 12 हफ्ते पहले एक बंदा हमारे माई एडवाइजर, आई एम इन द स्टैंडिंग काउंसिल फॉर कस्टमर सर्विस फॉर आईसीआईसीआई बैंक, सो दे थॉट दैट आई शुड बी एडवाइज्ड। वो घर पे आके बोला, सर आपका वो सेविंग्स बैंक को डिपॉजिट्स कुछ 28 लाख है, आप सिल्वर खरीदिए। मैं बोल रहा हूँ सर सिल्वर लो। मैं बोला नहीं यार, तू ऐसे ही बोलेगा सिल्वर खरीदेगा, मैं वो मेरे 28 लाख 15 लाख हो जाएंगे, तो मैं गरीब आदमी हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो वो बोला नहीं सर, मैं ऑफिस छोड़ के आया हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है, मैं 3 किलो सिल्वर ले लिया। वो बोलते गया, सर दिवाली गोल्ड का रेट ज्यादा है, पीपुल आर नाउ ज्वेलरी शॉप्स में दे आर बाइंग कुछ 1 ग्राम वो करके गोल्ड का प्लेटिंग करके वही खरीद रहे करते हैं आजकल लोग। मोटा चेन वेन नहीं पहन रहे, वो पहन रहे। वो पूरा बोला उसने। अब अभी क्या बोलूं? अबे हमारे मैडम भी इधर शायद कहीं बैठे, बोली लक्ष्मी घर पे आके नॉक करके बेल भी दबाया, तुमने दरवाजा नहीं खोला। आज के दिन वो ही सिल्वर बढ़ गया कुछ 60% 80%, और 2 लाख भी क्रॉस कर लिया, अबाउट 2 लाख। तो मेरा 3 लाख 6 लाख हुआ। और मैंने मेरे अमीर भाई को बोला यार तू भी खरीद, तो उसने बोला तू 3 किलो लेता, मुझे 30 किलो लेने के लिए बोलता, मैं भी 3 किलो लेता हूँ। वो भी 3 किलो लिए थे। अभी वो क्या बोलता है, तूने बताया क्या आईसीआईसीआई का वेल्थ मैनेजर तेरे पास आके बोला बोल के, मैं 50 किलो या 100 किलो ले लेता। आज के दिन मेरे पास 1 करोड़ पॉकेट में आके बैठता। तो दिस इन्वेस्टमेंट आइडियाज आर लाइक दिस मैडम, that is the big problem. See, gold has never disappointed anyone, because I always think, we have this habit of buying in Dhanteras and all that. We used to buy 1 tola, 2 tola, 1 tola and all that. अभी अगर हम हाइंडसाइट में सोचते हैं, जब हम स्टेट बैंक ज्वाइन किया, आरबीआई ज्वाइन किया, अगर एक 5% इनकम अगर हम गोल्ड में कर देते, आज हमारी हालत कुछ और होती। एडवाइस नहीं देते, खुद के पास होता। अजीब चीज है ये वक्त, अजीब चीज है ये वक्त जिसे कहते हैं आने का पता नहीं बीत जाता है। कुछ ऐसे ही हुआ दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सब अभी सर अवेलेबल हैं नेटवर्किंग सेशन में। यू कैन वेरी वेल आस्क हिम एंड गेट योर आंसर्स। And again, a very good evening to everyone. On behalf of Flow, I would like to extend a heartfelt thank you to Mr. Sudhakar Kaza for taking us through such an interesting money stories. The way you spoke about what happens when the money in our pocket suddenly loses its worth, that truly made us stop and think. Thank you, sir, for sharing your wisdom and experience in such an insightful and relatable way. और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे पैट्रन स्पॉन्सर्स का, पंजाबी सराफ बाय फ्लोआइट मिस अनु आनंद एंड मिस शीतल आनंद, MV Patel by Mr. Manish Patel, and Jaguar made in India for the world. Your faith, generosity and constant support mean the world to us. Our gratitude to Associate Partner Soumya Vehicles by Ms. Shweta Pravesh Agrawal, Furniture Partner Davina Furniture by Floite Ms. Kopal Maheshwari, Mobile Partner Oppo by Mr. Ashwini Nagar, and our celebration partners Home Cooks by Floite Ms. Sonal Shamsukha, Adam's Ale and Cake by Floite Ms. Shruti Maheshwari. Creative Partner Mango by Floite Ms. Mansi Pahwa. Media partners for beautifully amplifying our voice. A big thank you to our venue partner, The Park, for your warm hospitality. And of course, my heartfelt appreciation to our dedicated committee members. Your passion truly keeps the flow spirit alive. And may I now invite our committee members and sponsors to please join us on stage for a group photograph
to capture this wonderful moment together, followed by, please, all of you are welcome to have a beautiful picture with Sir and keep it in your memory box. Let us continue the warmth and conversations over a high tea, and you can continue to ask your questions. Thank you all once again from the bottom of our heart for being here, for your time, your smiles, and your energy. Together, we continue to grow, inspire, and transform. Thank you so much.